Assalamu alaikum dear students. A very good day to all of you. My name is Muhammad Ahsan Aslam and I am working as a subject specialist in chemistry at Divisional Public School and Inter Colleges Sahiwal. Let us start our today's lecture. Welcome dear students. Today we are having third lecture of chapter number 1 basic concepts. आज के हमारे टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं You should be able to understand the concept of average atomic mass, relationship between average atomic mass of an element and its natural abundance, and problem solving especially related to average atomic mass. So these are our learning objectives. Before I go into the detail of our today's lecture, I just want to overview some of the previous topic that you already have learned. For example, can we be able to define what is atomic mass? Just think for a while, what is atomic mass? It is defined as sum of number of protons and number of neutrons. They mostly present in the nucleus of an atom. So simply the mass of an atom is located in the nucleus of an atom. So this is the definition of atomic mass. I give you some examples. Example number 1 is atomic mass of sodium is 23. So it means it has 11 number of protons and 12 number of neutrons. So again I repeat the definition. Atomic mass of an atom is defined as sum of number of protons and sum of number of neutrons. Example number 1, you can see atomic mass of sodium is 23. So here number of protons are 11 and number of neutrons are 12. How do I know that number of protons are 11? Because I know the atomic number of sodium is 11. So the atomic number actually is the number of protons. So I know that number of protons are 11, and to calculate the number of neutrons, I just subtracted number of protons from the atomic mass to get the number of neutrons. So now I exactly know that there are number of protons and number of neutrons. Second example, similarly, atomic mass of calcium is 40 and its atomic number is also 20. So here number of neutrons and number of protons both are 20. How do I know? Again I repeat, number of protons plus number of neutrons, they must be equal to 40 because it is the atomic mass of calcium. Because the atomic number of calcium is 20, so I know that number of protons, they are equal to 20. When I subtracted 20 from 40, I got the answer of number of neutrons which are exactly equal to 20. Now here is a question for you. Atomic mass of chlorine is 35.5 AMU. How many protons and neutrons are present in it? Just think for a while. And its atomic number is 17. I give you an idea about the atomic number and the total number of neutrons plus number of protons, which is equal to mass number. Just try to subtract atomic number from atomic mass. You shall get the answer of number of neutrons. So it is like number of protons plus number of neutrons. Number of protons, they are equal to 17. How do I know? Because the atomic number of chlorine is 17. So number of neutrons must be equal to 18.5. So here is the concern that in an atom, can there be a half neutron? 18.5 means 18 neutrons and a half neutron. So is it possible that an atom may have half of a neutron? So another question, can elements have fractional atomic masses as we have seen in case of chlorine? I give you more examples related to this. The atomic mass of hydrogen is 1.008. Similarly, atomic mass of neon is 20.18. Silver also has a fractional atomic mass. Its value is 107.8. So dear students, you have to think for a while. Is it possible that some of the elements, they have fractional atomic masses? I again repeat, not all. In the periodic table, not all the elements, they do have fractional atomic masses. Only some of the elements, they do have fractional atomic masses. Actually the question is it possible that an element may have a fractional atomic mass?
If it is having a fractional atomic mass, then how will you calculate its number of protons and number of neutrons? Either number of protons or number of neutrons must be present in fraction. We know that these are particles. They must be integral multiple of 1, 2, 3, 4, so on. They can't be in fraction. To solve this mystery, let us start our today's topic, which is about average atomic mass. Actually, for elements having isotopes, their atomic masses are not exact atomic masses. Actually, it is the average of all the masses of different isotopes. I repeat again, average atomic mass, especially for those elements having isotopes. Element having one or more than one isotopes, the mass of that element will be average atomic mass. How will you calculate average atomic mass? Atomic masses of such elements also depends upon number of isotopes and their natural abundance. Actually, mass and natural abundance, they both contribute towards the average atomic mass of an element. So here is the formula to calculate average atomic mass. For example, I have considered an element which is having two isotopes, A and B. A and B. So how to calculate its average atomic mass? Here is a simple formula. Average atomic mass is equal to atomic mass of A multiplied by abundance of A. How we know the abundance of A? We have seen in last lecture. There is a table for the various isotopes in which their atomic masses and natural abundance was given. From there we can get the data, plus atomic mass of B multiplied by its own abundance, abundance of B divided by 100. Again I repeat the formula. Average atomic mass is equal to atomic mass of A multiplied by its own abundance, abundance of A, plus atomic mass of B multiplied by abundance of B. Dear students, if I have an element having isotopes more than 2, for example an element having, let's suppose, 3 or 4 isotopes, there will be a same formula for the calculation of its average atomic mass, but the change will be atomic mass of A multiplied by abundance of A plus atomic mass of B multiplied by abundance of B, plus if there is another isotope, its atomic mass, let's suppose that is C, atomic mass of C multiplied by abundance of C. So जितने भी isotopes होंगे आप उनको इसी तरतीब से लिखते जाएंगे, उसके एटॉमिक मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे सेकंड आइसोटोप के मास को उसकी मल्टीप्लाई करके उसकी अबंडेंस के साथ, और जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सबको आप टोटल से डिवाइड कर लेंगे बाय 100. तो बाय दिस वे यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक masses. Let us see numerical problem related to average atomic mass. Example number 1. Let us see the data first. Try to read the example. A sample of neon is found to consist of neon 1020. In the left hand side corner 10, it represents the atomic number, and on the right hand side upper corner 20 represents the atomic mass. It has 3 isotopes, neon 20, neon 21 and neon 22. In the percentages of 90.92%, 0.26% and 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic mass of neon. तो डाटे के अंदर हमें आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस और उनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो गिवन होगी. इस डाटे को लेकर हम कैसे अपने इस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले द ओवरऑल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन. आपको पता होना चाहिए कि ये नियॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो असल में इन तीनों की एवरेज होगा. सो नियॉन का एटॉमिक मास बताने के लिए हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा.
So the overall atomic mass of neon, which is an ordinary isotopic mixture, इस लाइन का क्या मतलब है, आपके पास जब भी नियॉन का सैंपल होगा, आप जहां से भी नियॉन लेंगे तो आपके पास हमेशा जो है वो नियॉन इसी परसेंटेज में, आपके पास कभी भी उसका कोई सिंगल आइसोटोप नहीं होगा, ये हमेशा तीनों आइसोटोप जो है ये मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज मोस्टली आउट ऑफ 100 इसी रेशियो में होती है. सो इज द एवरेज ऑफ द डिटरमाइंड एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप्स. तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो हम इन तीनों की आइसोटोपिक मिक्सचर के एटॉमिक मासेस की एवरेज निकालेंगे. Hence, average atomic mass is equal to 20 multiplied by 90.92. ये आपके पास इसका पहला आइसोटोप है, उसका एटॉमिक मास, उसको हमने उसी की अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया. यू गॉट द पॉइंट. 20 ये आपके पास पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास है, इसको इसी की अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है. फिर उसके बाद प्लस करना है सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास, उसको उसी की अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस atomic mass of third element multiplied by its own abundance divided by 100. I repeat this step. Average atomic mass is equal to atomic mass of that isotope multiplied by its own abundance. जैसे पहला आइसोटोप हमारे पास ये है जिसमें इसका एटॉमिक मास जो है वो 20 है और इसकी जो अबंडेंस है ये 90.92 है. तो हमने इसके एटॉमिक मास को इसी की अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद प्लस किया सेकंड आइसोटोप को उसी की अबंडेंस के साथ, प्लस थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. अब मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये आपको पता है कि ये एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है AMU. तो आपके पास आंसर आ गया 20.18. तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, तो इससे आपको आपके उस सवाल का जवाब भी मिलता है कि यस एलिमेंट्स दे डू हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस. और ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस जो है ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये जितने भी मिक्सचर के अंदर उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और उनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है उनको सॉल्व करके ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसी से रिलेटेड हम और इसी तरह के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं इसी को दोबारा से एक दफ़ा ज़रा ओवरव्यू कर देता हूँ. हमारे पास क्वेश्चन में था सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 इन द परसेंटेजेस ऑफ 90.92, 0.26 एंड 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic masses of neon. How to solve this kind of problems? This is just for your information. The overall atomic masses of neon, which is an ordinary isotopic mixture, is the average of the determined atomic masses of individual isotopes. Hence, average atomic mass is equal to 20 multiplied by 90.92 plus 21 multiplied by 0.26 plus 22 multiplied by 8.82 divided by 100. So the answer is 20.18. Now another question from our exercise, which is question number 6. Let us try to read the question first. This is the whole question. Silver has atomic number 47 and has 16 known isotopes, but 2 occurs naturally. ये आपको कल के टॉपिक के अंदर हमने बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते. उन्हीं की एक एग्जांपल आपके पास क्या है, सिल्वर है. और यहाँ पे एक और बात कि अगर आप सिल्वर का एटॉमिक मास देखें तो ये ऑड नंबर है. तो हमने कल ये बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस मोस्टली क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज़्यादा की स्टेबल नहीं होते. तो इसके 2 आइसोटोप्स जो है ये नेचुरली अकरिंग है, स्टेबल हैं. उनका मास नंबर है 107 एंड 109. Given the following mass spectrometric data, calculate the average atomic mass of silver. So जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर है 107, इसका एग्जैक्ट मास है 106.9, इसको राउंड ऑफ करके हमने 107 लिखा है. इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 51.84. सिमिलरली सेकेंड आइसोटोप ऑफ सिल्वर जिसका एटॉमिक मास राउंड ऑफ करके 109 है, एग्जैक्ट उसका एटॉमिक मास 108.9 है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 48.16.
तो डाटा के अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, और वो होते हैं एटॉमिक मासेस और उनकी परसेंटेज अबंडेंस। आइए इस डाटा की मदद से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो डाटा दिया हुआ था आपने उसकी मदद से फार्मूले के अंदर ये डाटा जो है ये प्लग इन करना है। ये देखें ज़रा, पहला आइसोटोप था आपके पास, उसका एटॉमिक मास था 106.905 मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन अबंडेंस। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस प्लस atomic mass of second isotope multiplied by its own abundance divided by 100. Dear students, I repeat again, this is the atomic mass of first isotope multiplied by its own natural abundance जो कि डाटा के अंदर हमें गिवन है, प्लस atomic mass of second isotope multiplied by abundance of second isotope divided by 100. पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 5541.95 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 5244.8166 डिवाइडेड बाय 100। फिर इन दोनों को आप प्लस कर लें और जो आंसर आएगा उसको आप 100 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आता है 10786.76 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट द आंसर 107.86 और एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये था आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आई रिपीट द क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन अगेन। ये आपके पास क्वेश्चन था, सिल्वर हैज एन एटॉमिक नंबर 47 and has 16 known isotopes but two occur naturally, that is silver having mass number 107 and mass number 109. Given the following mass spectrometric data, calculate the average atomic mass of silver. तो ये आपके पास डाटे के अंदर इसका मास है 106.90 एंड 108.90 और इन दिनों की जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 51.84 एंड 48.16। अब इस तरह के प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जिस आइसोटोप का मास लिखना है उसको उसी की नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर आपने दूसरे आइसोटोप का मास लिखना है और उसको उसी की नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और इस सारे को आपने 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। So by multiplying these two, I got the answer 5541.95 plus 5244.8166 divided by 100. So by adding these two, I got 10786.76 divided by 100. So the average atomic mass of silver is 107.86. This is exactly when you see the periodic table, you find the average atomic mass of silver, it is written as 107.86. Dear students, आइए इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसका स्टेटमेंट है बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 have two naturally occurring isotopes. Calculate the percentage abundance of boron having atomic mass 10 and boron having atomic mass 11 from the following information. Let us see the information first. Average atomic mass of boron is equal to 10.81 AMU. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज एटॉमिक मास खुद से दिया हुआ है। Isotopic mass of boron 10 is equal to 10.0129 AMU. Isotopic mass of boron 11 is equal to 11.0093. तो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड दिस वन इज कि पिछले वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें डाटा के अंदर उनकी नेचुरल अबंडेंस और उनके आइसोटोपिक मास दिए हुए थे, हमने उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट बोरोन इज गिवन इन द क्वेश्चन and isotopic mass of its isotope also given. We have to calculate their percentage abundance. तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपने जो डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस डाटे को लिखना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 10.81. सिमिलरली आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन 10 इज इक्वल टू 10.0129. तो आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन इज 11 इक्वल टू 11.0093. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। सबसे पहले जो आपने कैलकुलेट करना है, आपने B10 और B11 की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है।
तो क्योंकि ये आपके पास अननोन है, इसको हम कोई भी वेरिएबल लेट्स सपोज हम जो है वो एक्सपोज कर लेते हैं। अगर एक आइसोटोप की परसेंटेज आपने एक्सपोज की है तो दूसरे की परसेंटेज लाजम 100 - x होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर B10 की परसेंटेज को एक्सपोज किया है, तो जो B11 है उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली 100 - x होगी। क्यों? क्योंकि जब हम B10 और B11 इन दोनों की नेचुरल अबंडेंस को ऐड करेंगे तो इनका सम हमेशा 100 बनना है। तो अगर एक की x है तो दूसरे की लाजम टोटल में से आप x को माइनस करेंगे, और टोटल यहाँ पे कितना है? 100 है, क्योंकि ये दोनों क्या है? परसेंटेजेस हैं। आइए अब हम इन्हीं वैल्यूज को फार्मूला के अंदर प्लग इन करते हैं। ये है आपके पास सबसे पहले फार्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ B10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ B10 प्लस मास ऑफ B11 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ B11 डिवाइडेड बाय 100। एक दफा फिर से डियर स्टूडेंट्स फार्मूले को देख लें। मास ऑफ B10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ B10 प्लस mass of B11 multiply by percentage of B11 divided by 100। आइए इस फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इसकी वैल्यू है 10.81, मास ऑफ B10 जो कि है 10.01, परसेंटेज ऑफ B10 ये हमने कैलकुलेट करनी है और इसको हमने एक्सपोज किया हुआ है। प्लस करेंगे मास ऑफ B11 जिसकी वैल्यू है 11.0093 और परसेंटेज ऑफ B जो कि अननोन है जिसको हमने सपोज किया है 100 - x डिवाइडेड बाय 100। तो इस 100 जो कि डिनोमिनेटर में है इसको इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10.81 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा 10.01 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये कंबाइन होके बन गया 10.01 टाइम्स x प्लस अब ये जो 11.0093 है इसको आपने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1100.93 और जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -11.0093x। अब ये आपके पास वेरिएबल x की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है जिसको हमने मैथमेटिकली क्या करना है? सॉल्व करना है। हम जो x वाली टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की एक साइड पे रखेंगे और जो दूसरी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि ये आपका जो है वो सॉल्व हो सके। तो ये जब आपने 10.81 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपके पास आंसर आ गया 1081। इस स्टेप के अंदर सिर्फ मैंने 100 को 10.81 से मल्टीप्लाई किया है, रेस्ट ऑल वैल्यूज रिमेन्स द सेम। अगले स्टेप के अंदर हम इन वैल्यूज को जो है वो रीअरेंज करेंगे। इस 1100.93 को हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना है। इस साइड पे इसका जो साइन है ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो 10.01 टाइम्स x है ये माइनस होगा 11.0093 टाइम्स x से। तो जब आप 1081 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1100.93 से तो आपके पास आंसर आएगा -19.93। माइनस इसलिए क्योंकि इसमें जो आपके पास बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या है? माइनस है, तो वो साइन शुरू में आएगा। सिमिलरली जब आप 10.01 x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11.0093 टाइम्स x से तो आपके पास आंसर आएगा 0.9964 टाइम्स x। इसका भी जो साइन है वो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो अब अगले स्टेप के अंदर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारी टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, इसको दूसरी साइड पे जाकर आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो बाय डिवाइडिंग 19.93 0.994 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.002 जिसको हमने सपोज किया हुआ है इट इज द परसेंटेज ऑफ 10b। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10.002%। सिमिलरली जब आपने परसेंटेज ऑफ B11 फाइंड करनी है तो आप इसको 100 माइनस क्या करेंगे? x करेंगे। तो 100 माइनस x की वैल्यू 20.002, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आता है 79.99। It means that in an isotopic mixture of boron having atomic mass 10 and atomic mass 11, इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो 20.002 और 79.99 होगी रिस्पेक्टिवली। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी को हम ज़रा दोबारा से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रिव्यू करते हैं।
ये था आपके पास क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 हैव टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 एंड B11 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या थी? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 10.81, आइसोटोपिक मास ऑफ B10 इज इक्वल टू 10.0129 एंड आइसोटोपिक मास ऑफ B11 इज इक्वल टू 11.0093 AMU। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप डाटा के अंदर जो गिवन वैल्यूज हैं वो डाटा की फॉर्म में उनको जो है वो अरेंज कर लें। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 10.81 AMU, आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन B10 इज इक्वल टू 10.0129 एंड आइसोटोपिक मास ऑफ B11 इज इक्वल टू 11.0093। अब हम फार्मूला लगाते हैं। उससे पहले हमने ये सपोज करना है कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है उसको आपने कोई भी वेरिएबल इन x, लेट्स सपोज आपने उसको सपोज कर लिया, तो आपके पास आ गया परसेंटेज ऑफ B10 जो कि आपने कैलकुलेट करनी है उसको हमने x सपोज किया है। क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स हैं, दोनों की नेचुरल अबंडेंस फाइंड करनी है, तो दोनों की नेचुरल अबंडेंस को हम सपोज कर लेंगे। तो इसकी परसेंटेज ऑफ B11 को हमने 100 माइनस एक्स रखा। 100 माइनस एक्स इसलिए रखा क्योंकि जब इन दोनों की नेचुरल अबंडेंस को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर, क्योंकि ये आउट ऑफ परसेंटेज है, आउट ऑफ 100 है, तो टोटल 100 आना है। अगर एक ही एक्स है तो लाजम दूसरे की क्या होगी? 100 माइनस एक्स। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। इनको हमने सपोज कर लिया। अब आपके सामने फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास, जिस आइसोटोप का मास है उसको उसी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू है 10.81 और ये जो मास था आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन 10, इसका मास जो गिवन था ये था 10.01 टाइम्स x। x जो है ये परसेंटेज ऑफ B10 है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली मास ऑफ 11B ये है आपके पास 11.0093 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो परसेंटेज है 100 माइनस एक्स कैलकुलेट करनी है, हमने सपोज की है। इसको आपने 100 पे डिवाइड करना है। अब आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। इस 100 को जो कि डिनोमिनेटर में है इधर ला के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.81 मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल टू, ये आपके पास वैसे रहेगा 10.01 टाइम्स x प्लस, और ये जो 11.0093 है इसको ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 1081 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रिमेन्स द सेम। अगले स्टेप के अंदर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म की 1100.93, इसको इधर ले जाकर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो 10.01 टाइम्स x है माइनस 11.0093x, ये इक्वेशन की एक साइड पर रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 19.93 इज इक्वल टू माइनस 0.9964 टाइम्स x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, इसको आपने दूसरी साइड पे जाकर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 20.002। ये आपके पास x की वैल्यू है, और x की वैल्यू को हमने सपोज किया हुआ है परसेंटेज ऑफ बोरोन 10। सिमिलरली जब आप B11 की परसेंटेज फाइंड करेंगे तो आपने इसको 100 माइनस एक्स सपोज किया था, ये आपके पास x की वैल्यू है। 100 में से ये वैल्यू आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.99%। तो इस तरह से हमने आइसोटोपिक मिक्सचर में बोरोन के दोनों आइसोटोप्स, उनकी जो है वो नेचुरल अबंडेंस फाइंड कर लिया। इसी लेक्चर को हमने क्या करना है? रिकैप करना है। रिकैप में जो आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली ऐसे एलिमेंट्स के लिए है जिनके आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट्स स्पेशली हैविंग आइसोटोप्स, उनका जो एटॉमिक मास होता है ये असल में जो तमाम आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस और उनकी नेचुरल अबंडेंस को देखकर कैलकुलेट किया जाता है। So elements having isotopes, their atomic masses are always their average atomic masses of all the possible isotopes। तो ये था आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, और हमने देखा कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये फ्रैक्शन में हो सकता है। फिर उसके बाद आज के टॉपिक के अंदर हमने आपको एवरेज एटॉमिक मास और जो परसेंटेज अबंडेंस थी
उनसे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक भी सिखाई है। हमने देखा कि हमने दो किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना है इस एवरेज एटॉमिक मास के टॉपिक से रिलेटेड। एक वो जिसके अंदर हमें नेचुरल अबंडेंस फाइंड करनी है और वो हमें एवरेज एटॉमिक मास खुद से दे रहा है और साथ में आइसोटोपिक मास दे रहा था। उसमें हमने जो एवरेज एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू पुट करके नेचुरल अबंडेंस को अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेना है और फार्मूले को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपके पास नेचुरल अबंडेंस की जो है वो वैल्यू आ जाए। इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया था। जो सेकंड था एग्जांपल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड, उसमें ये था कि हमें आइसोटोपिक मास और उनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो उसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास जो है ये खुद से क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स डियर स्टूडेंट्स आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इससे आपको कम अज़ कम जो है वो अपने लेक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल पिक का अंदाज़ा होता है कि आपने लेक्चर को कहाँ तक पिक किया है और आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक फ़िलहाल क्लियर नहीं हुई हैं, ताकि उसको दोबारा से लेक्चर को रिव्यू करके क्लियर किया जा सके। तो आज के इसके टॉपिक से रिलेटेड जो असाइनमेंट है उसमें सबसे पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ सैंपल ऑफ क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स having mass number 35 and mass number 37. Percentage of these isotopes in sample is 75.54 and 24.46% respectively. So calculate the average atomic mass of chlorine. तो ये आपको यहाँ पे मैं हिंट देता चलता हूँ कि ये वाला जो असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन है ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है। इसको सॉल्व करने से पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 1 को रिव्यू कर लें तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की आपके असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनके आइसोटोपिक मास है 20, 21 एंड 22। इनमें से किसी भी आइसोटोप का मास 20.18 नहीं है, लेकिन जब भी पीरियोडिक टेबल में या किसी भी जगह पे नियॉन लिखा जाता है और उसके साथ उसकी मास की वैल्यू बताई जाती है तो इसकी मास की वैल्यू हमेशा 20.18 AMU लिखी और बताई जाती है। हालांकि इसके किसी भी आइसोटोप का मास ये नहीं है। तो इसकी रीज़न आपने डियर स्टूडेंट जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इसकी क्या वजह है। तो ये इसका हिंट जो है वो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मिलेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टुडेज लेक्चर। एट द एंड अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।